اس کے ساتھ ہی میری کرسی خود بخود گھوم گئی اور میری آنکھوں کے سامنے ایک وسیع اسکرین تھی جس پر کچھ دھندلاہٹ تھی۔ دفتن اس نے کہا، ان میں تم نہیں ہو نیگی۔ میرے بدن میں ایک بار پھر سنسنی دوڑ گئی۔ ڈراپ سین ہو گیا تھا۔ وہ بولا، کیا خیال ہے میرے نادان عزیز؟ میں نے کہا، قابل تعریف۔ صبح دن چڑھے، آنکھ کھلی۔ دن کو 11 بجے فالکر نے آ کر سب ٹھیک ہونے کی اطلاع دی۔ میں نے آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے کمرے میں روشنی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مس جینٹلن سے نہ جانے آج کیسے جان بچی رہی، وہ نہ جانے کہاں مصروف تھی۔ بہرحال مجھے اس خطرناک عورت کے نہ آنے کی خوشی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اس کے قرب سے نروس سا ہو جاتا۔ سارا دن پرسکون گزرا۔ شام ہو گئی۔ میں باہر کے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ذرا سی بے چینی بھی تھی۔ نہ جانے میری تلاش اب کس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں، نہ جانے کیا وقت ہوا ہے۔ میرے کوارٹر میں خاموشی اور سناٹا تھا۔ سارا دن کمرے میں پڑے پڑے بوریت ہو گئی تھی، چنانچہ میں باہر نکل آیا۔ مجھے کچھ افراتفری سی محسوس ہوئی تھی۔ باہر کچھ زیادہ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ضرور کوئی خاص بات تھی۔ میں نے جلدی سے کوارٹر کا باہری دروازہ بند کیا اور اس کے بائیں سمت کی ایک دیوار پر چڑھ کر چھت پر پہنچ گیا۔ اسے خوش بختی ہی کہا جا سکتا تھا کہ چھت پر مجھے چھپنے کے لیے ایک معقول جگہ مل گئی تھی۔ کوارٹر کی پشت پر ایک بہت تناور درخت پھیلا ہوا تھا جس کی شاخوں نے کوارٹر کی پوری چھت ڈھانپ لی تھی۔ یہ شاخیں خوب گھنی تھیں اور ان میں آسانی سے چھپا جا سکتا تھا۔ میں شاخوں میں چھپتا چھپاتا کوارٹر کے سامنے کے سرے پر پہنچ گیا، جہاں سے باہر کے مناظر صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ 10-12 سٹین گن بردار ایک حصار سا بنائے کھڑے ہوئے تھے اور اس حصار میں عمارت کے سارے ملازمین اور دوسرے افراد موجود تھے۔ چوڑے چہرے والا ایک شخص دوسرے 2-3 افراد کے ساتھ حصار کے اندر موجود لوگوں کو چیک کر رہا تھا۔ فالکر بھی ان کے ساتھ اس کارروائی میں حصہ لے رہا تھا۔ یہ چوڑے چہرے والا شخص نہ جانے کون تھا۔ بہرحال اس بات میں شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ کارروائی بھی میری تلاش کا ایک حصہ تھی۔ وہ تمام لوگوں کے چہرے ایمونیا سے دھلوا کر نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ اس کام کے لیے انہیں کئی دن درکار ہوتے، لیکن اپنے طور پر وہ اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں میں ان ملازموں کے درمیان تو موجود نہیں ہوں۔ بڑی خوفناک بات تھی۔ مجھ سے بھی ضرور پوچھا جائے گا اور میں ان لمحات کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ 2 باتوں سے ایک کا فیصلہ کرنا تھا، یا تو میں یہیں چھپا رہوں اور ان کے سامنے نہ آؤں، یا پھر یہ خطرہ مول لے لوں۔ میرا میک اپ اتنا معمولی نہیں تھا کہ آسانی سے ان لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل جاتا، مگر اس مرحلے سے گزر گیا تو پھر کافی آسانیاں ہو جائیں گی۔ مگر وہ چوڑے چہرے والا، ممکن ہے وہ بہت تیز نگاہ رکھتا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ کام جاری رہا اور پھر چوڑے چہرے والے شخص نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا۔ اس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ سکے، لیکن اس کے بعد سٹین گن والوں کا حصار ختم ہو گیا۔ تمام ملازمین منتشر ہو گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک بار پھر میری جان بچ گئی تھی۔ غالباً انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک بے مقصد کارروائی ہے اور اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، لیکن یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا مجھے کہ وہ میری تلاش میں ناکام ہو کر اب اس لائن پر سوچنے لگے ہیں کہ ممکن ہے میں کسی دوسرے میک اپ میں ہوں۔ مگر یہ تصور زیادہ خوفناک تھا کہ وہ میرے یہاں موجود ہونے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ حالانکہ میں انہیں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور ان لوگوں سے خوفزدہ ہوں، یعنی یہاں سے نکل جانے کا خواہش مند۔ بہرحال اس وقت یہ آفت ٹل گئی تھی، لیکن اب کچھ کرنا تھا۔ اس بارے میں ساری رات سوچتا رہا اور جب صبح ہونے والی تھی تو میں ایک فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری صبح مس جینڈولن مجھ سے ملاقات کرنے آئیں تو میں نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا، تمہارے اس کمرے میں تاریکی بہت ہے، روشنی کر دوں؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر لائٹ جلا دی۔ مس جینڈولن نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ، تمہاری حالت خاصی بہتر نظر آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ معمولی سا نزلہ تھا، ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے پریشان ہونا بیکار ہے۔ اس نے پوچھا، آنکھیں ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، نزلہ ہمیشہ میری آنکھوں کو متاثر کرتا ہے، اب ٹھیک ہوں۔ ویسے میری غیر موجودگی میں فالکر کیا کرتا رہا ہے؟ وہ بولی، کوئی شکایت نہیں ہوئی کہیں سے؟ فالکر نے بخوبی سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں، پھر بھی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، گارڈز کو بہت چاق و چوبند رہنا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ وہ بولی، وہی مفرور شخص سب کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، ابھی تک ہاتھ نہیں آیا۔ ویسے خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ لون کو قتل کر کے وہ اس عمارت تک آ گیا اور پورے دن اپنی تلاش میں سرگردہ رہا، جبکہ لون کی لاش کار کی ڈکی میں موجود تھی۔ یہ معمولی دل گردے والے کا کام نہیں۔ میں نے مصنوعی تاثر کے ساتھ کہا، واقعی؟
मगर वो है कौन? वो बोली, खुदा जाने। कल इमारत के तमाम मुलाजमीन को सेक्रेटरी साहब ने खुद चेक किया था। मैंने पूछा, इमारत के मुलाजमीन को क्यों? बोली, बस ख्याल था कि कहीं वो किसी और के मेकअप में तो यहाँ दाखिल नहीं हो गया। मैंने पूछा, क्या वो मेकअप का माहिर है? मिस जेंटलिन ने कहा, मुझे इस बारे में ज्यादा तफसीलात मालूम नहीं। मैं दिल ही दिल में उस शख्स के बारे में सोच रहा था जो उन लोगों को चेक कर रहा था। तो वो सेक्रेटरी है, लेकिन कमबख्त अजीब बेहुदा सा इंसान था। मैं उसका रूप भी धार सकता था और वो बड़े काम की चीज था। मिस जेंटलिन थोड़ी देर तक बातें करती रही, फिर वो चली गई और मैं बाहर निकल आया। मैंने मिस्टर नेगी की कब्र देखी जो गमले में थी। उसकी हिफाजत करते रहना जरूरी था। फिलहाल यही मेरी बचत का एक जरिया था। अगर उसका राज फाश हो जाता तो मेरा खेल भी खत्म हो जाता। अपने क्वार्टर से निकलकर मैं हालात का जायजा लेता फिरा। फॉल्कर की निगाह मुझ पर पड़ी तो वो तेजी से मेरे पास पहुंचा। ओ मिस्टर नेगी, आपने क्यों जहमत की? कुछ और आराम कर लेते। मैंने कहा, अब मैं ठीक हूँ फॉल्कर, कोई उलझन तो नहीं है? बोला, नहीं जनाब, कोई खास बात नहीं है, बस जरा ड्यूटियां बदलनी पड़ी हैं। दाखिली दरवाजे पर खास तौर से निगरानी सख्त करना पड़ी है हमें। मैंने पूछा, मफरूर का मामला है? फॉल्कर ने जवाब दिया, हाँ, कोई खास आदमी मालूम होता है। मैं उसके साथ इमारत में दाखिल हो गया। ये अंदरूनी इमारत थी, यानी वो जगह जहाँ मिस्टर हेनरिक का कयाम था। मेरे ड्यूटी गार्ड मुस्तैद थे। अब अंदाजा हुआ कि नेगी महज निगरान था, लेकिन रोबदाब का आदमी था। तमाम अमला मेरे सामने मौद्दब था। इमारत के अंदरूनी हिस्से के लोग भी मेरी इज्जत कर रहे थे। उस वक्त हम दोनों, यानी मैं और फॉल्कर, एक राहदारी से गुजर रहे थे कि दफतन एक कमरे के दरवाजे से वही चौड़े चेहरे वाला शख्स निकल आया। हम दोनों को देखकर वो ठिठक गया। फिर उसने कहा, नेगी यहाँ आओ, मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला था। मैंने जोर से कहा, ओके फॉल्कर, तुम जाओ और सुनो, पूरी इमारत के चक्कर लगाते रहो, बल्कि 2 आदमी इस काम के लिए मखसूस कर दो कि वो 1-1 घंटे के बाद इमारत के अहाते का चक्कर लगाते रहें। मैंने इतनी जोर से कहा ताकि सेक्रेटरी भी सुन ले। फॉल्कर ने कहा, ठीक है जनाब, और चला गया। मैं उस कमरे में दाखिल हो गया जिससे सेक्रेटरी बाहर निकला था और अब दोबारा कमरे में दाखिल हो गया था। वो बोला, कुछ जरूरी हिदायत हैं तुम्हारे लिए नेगी। मैंने अदब से कहा, हुक्म जनाब। बोला, सूरत हाल तुम्हारे इल्म में है, मैं तुम्हारे स्टाफ में कुछ और लोगों का इजाफा करना चाहता हूँ। मैंने कहा, जैसा आप मुनासिब ख्याल फरमाएं, लेकिन इसकी जरूरत तो नहीं है। वो बोला, नहीं नेगी, जरूरत है। तुम्हारे गार्ड सिर्फ मुस्तैद सिपाही हैं, वो ज्यादा चालाक नहीं है, जबकि वो कमबख्त बहुत चालाक मालूम होता है। मुझे ये खदशा है कि वो किसी तरह इस इमारत में दाखिल न हो जाए। मैंने किसी कदर उलझे हुए अंदाज में कहा, आखिर वो है कौन? सेक्रेटरी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, बस यार क्या बताया जाए, हमारे लिए किसी नई उलझन का इजाफा होता ही रहता है। मैडम मार्सिया का मंजूर नजर था। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। बोला, इस वक्त मुझसे सवाल न करो नेगी, मैं बहुत मसरूफ हूँ। 6 आदमी तुम्हें दे रहा हूँ, इन लोगों को ले जाओ और ड्यूटी गार्ड से इनका तारुफ करवा दो। ये सब दाखिली दरवाजे पर रहेंगे और आने जाने वालों पर खुसूसी निगाह रखेंगे। इसके अलावा रात की ड्यूटी में तुम खुद यहाँ इमारत में रहोगे, सारी रात यहाँ गश्त करोगे। तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, एक सवाल और करूं जनाब? बोला, हाँ पूछो। मैंने कहा, क्या उस शख्स से इमारत में किसी को खतरा है? सेक्रेटरी बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अव्वल तो वो इमारत में दाखिल होने की जुर्रत ही नहीं करेगा। किसे पड़ी है कि वो खुद मौत के मुंह में चला जाए, लेकिन वो शख्स जिस कदर चालाक है उसके तहत होशियार रहना जरूरी है। मुमकिन है वो इस इमारत ही को अपने लिए बेहतरीन पनाहगाह तस्वुर करे। मैंने कहा, ओके सर, आप मुतमईन रहें। सेक्रेटरी ने कहा, आओ मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवा दूं जिन्हें तुम ये ड्यूटी सौंपोगे। वो 6 अफराद एक कमरे में मौजूद थे, सब के सब लबनानी ही मालूम होते थे। सेक्रेटरी ने उनसे मेरा तारुफ करवाया और फिर वो चला गया। मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक उन सबको उनकी ड्यूटियों पर तैनात कर दिया। वैसे ये एक दिलचस्प काम था। मैं खुद अपने लिए इंतजामात कर रहा था। ऊंट किस करवट बैठे। मुमकिन है मैं यहाँ अपने तौर पर मुकम्मल कामयाबी न हासिल कर सकूं, लेकिन ये लोग मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। जब इन्हें हालात का इल्म होगा तो वो अपने बाल नोचते और चेहरे खसूटते रह जाएंगे। सारा दिन मसरूफ गुजरा। रात को मैं इमारत में आ गया। मैंने ड्यूटी गार्ड्स को होशियार कर दिया था। इस दौरान हेनरिक मुझे एक बार भी नजर नहीं आया था। उस वक्त मैं उसकी रिहाइशगाह के आसपास ही मौजूद था। अपनी दानिश में ये लोग अभी तक मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे थे, लेकिन अब मैं इनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने इमारत से बाहर कदम नहीं निकाला और अंदर ही अंदर गश्त करता रहा।
उस वक्त तकरीबन रात का 1 बजा था। मैं हेनरिक की ख्वाबगाह के सामने से गुजर रहा था कि दफतन ख्वाबगाह का दरवाजा खुला। बाहर आने वाला हेनरिक ही था। मुझे देखकर वो ठिठक गया। शब ख्वाबी के लिबास में वो अजीब नजर आ रहा था। उसने एक लंबी टोपी पहन रखी थी। उसने मुझे आवाज दी, नेगी, और मैं दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंच गया। हेनरिक ताज्जुब से मुझे देख रहा था। उसने कहा, अंदर आओ मेरे साथ, और दोबारा अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। एक लम्हे के लिए मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया और खामोशी से उसकी ख्वाबगाह में चला गया। बहुत खूबसूरत ख्वाबगाह थी, आला दर्जे के फर्नीचर से आरास्ता। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे नेगी? मैंने अदब से जवाब दिया, सेक्रेटरी साहब ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है सर। वो बोला, हाँ, हालात ऐसे ही परेशान कुन है नेगी। तुम्हारी यहाँ पर ड्यूटी जरूरी है? तुमने इससे कबल ये ख्वाबगाह देखी है? मैंने कहा, नहीं जनाब। वो बोला, कमाल है, तुम मुंतजिम आला हो। मेरा तो ख्याल था कि तुम इस ख्वाबगाह की सफाई भी अपनी निगरानी में ही करवाते होगे। मैंने जवाब दिया, मैंने यहाँ अपने मातहत फॉल्कर को तैनात कर दिया है जनाब। आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। हेनरिक के ये सवालात बेमानी नहीं थे। जरूर उसके जहन में कोई खटक पैदा हो गई थी। मैंने अचानक नई सूरत हाल पैदा हो जाने से अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की और संभल गया। हेनरिक बोला, हाँ, फॉल्कर एक होशियार और मुस्तैद नौजवान है। वाकई कभी कोई शिकायत की बात नहीं हुई, लेकिन ये एजाज उसे भी हासिल न हो सका होगा कि उसने पूरी ख्वाबगाह देखी हो। आओ मैं तुम्हें उसके बारे में तफसीलात बताऊं। आओ, हेनरिक ने कहा, और मेरी समझ में नहीं आया कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। ख्वाबगाह मेरे सामने थी। हेनरिक एक दीवार के करीब पहुंच गया। उसने दीवार में नस्ब कोई बटन दबाया और एक पूरी दीवार सरक कर दूसरी तरफ हट गई। हेनरिक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। क्या ख्याल है? मैंने कहा, हैरत अंगेज जनाब, यहाँ ऐसी किसी चीज का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो बोला, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें इस जजीरे के अजायबात से रूशनास करवाऊं। आ जाओ अंदर। हेनरिक उस जगह से गुजर कर दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरी समत सीढ़ियां बनी हुई थी, चौड़ी सीढ़ियां थी। हेनरिक निहायत इत्मीनान से वो सीढ़ियां उतर रहा था। मैं भी उसके साथ सीढ़ियां तय करने लगा। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, सिर्फ चंद अफराद हैं जो इस जगह से वाकिफ हैं, जनरल शेरॉन, मार्शल गोयान और मेरा सेक्रेटरी। बस तुम चौथे आदमी हो जिसे मैं यहाँ लाया हूँ। दूसरी तरफ तारीकी थी, लेकिन आखिरी सीढ़ी उबूर करने के बाद हेनरिक ने न जाने क्या किया कि चारों तरफ रोशनी फैल गई। सफेद दूधिया रोशनी जो आंखों को बुरी नहीं मालूम हो रही थी। मैंने उस रोशनी में उस अजीबोगरीब जगह को देखा। अजायबात में शुमार किया जा सकता था उसका। ये एक अजीमुशान हॉल था जो किसी सुतून के बगैर नजर आ रहा था। इंसानी हाथों की तामीर थी। दीवारों में अलमारियां नजर आ रही थीं। जगह जगह अजीब तर्ज की मशीनें मौजूद थीं। एक जगह चंद पिंजरे बने हुए थे, जिनमें से एक पिंजरे में 2 स्याह फाम नजर आ रहे थे। वो दोनों रोशनी देख कर खड़े हो गए थे। हेनरिक ने कहा, आओ, और मैं बेइख्तियार आगे बढ़ गया। रास्ते में मैंने एक छोटा सा हौज देखा जिसमें भरे हुए पानी पर काई सी जमी हुई थी। उस हौज पर शीशे का ढक्कन था। हेनरिक उसके ऊपर से गुजर गया। मुझे भी उस पर से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं पूरी तरह होश में था। कोई खास बात नहीं हुई। हम उस हॉल के वस्त में थे। हेनरिक एक बड़ी मेज के पीछे बैठ गया और फिर उसने मुझे भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैंने कहा, सर, अगर मुझे इजाजत हो तो। हेनरिक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। बोला, यानी इस इमारत की निगरानी? मैंने कहा, जी हाँ। वो बोला, इस इमारत के लिए तुम फिक्रमंद ना हो, यहाँ बैठकर भी तुम अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हो। बैठो। मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। वो एक खास डिजाइन की कुर्सी थी। मैं किसी भी लम्हे किसी हादसे का मुंतजिर था, लेकिन अब तो इस चूहेदान में फंस ही चुका था। अब जो कुछ भी हो। हेनरिक बोला, तो मिस्टर नेगी, ये है मेरी कायनात। तुम्हें इसकी हकीकत जानकर मुसरत हुई होगी। मैंने तुम्हारी ड्यूटी वाली बात गलत नहीं कही। ये देखो, ये तुम्हारी ड्यूटी की जगह है। उसके साथ ही मेरी कुर्सी खुद ब खुद घूम गई और मेरी आंखों के सामने एक वसी स्क्रीन थी जिस पर कुछ धुंधलाहट थी, लेकिन चंद लम्हात के बाद ये धुंधलाहट साफ हो गई और उस पर बाहर के मनाजिर रोशन हो गए। ये इमारत के खास हिस्से थे। राहदारियां सुनसान पड़ी हुई थीं। स्क्रीन पर मनाजिर बदल रहे थे और इमारत के मुख्तलिफ हिस्से आते जा रहे थे। ड्यूटी गार्ड अपनी अपनी जगहों पर मुस्तैद थे। पूरी इमारत देखने के बाद हेनरिक की आवाज उभरी, क्या ख्याल है मिस्टर नेगी? क्या यहाँ से तुम्हारा काम तसल्ली बख्श अंदाज में नहीं हो रहा? मैंने कहा, जी हाँ, ये निजाम हैरत अंगेज है। हेनरिक ने कहा, यही नहीं, कुछ और भी देखो। स्क्रीन दोबारा रोशन हो गई। अब इमारत के बैरूनी मनाजिर भी नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि उसका पहला दाखिली दरवाजा नजर आया और फिर नजदीक दूर के मनाजिर। इस दौरान हेनरिक की आवाज फिर उभरी, मैंने कुछ और इंतजामात भी किए हैं नेगी। बाज चीजों में रिप्ले की जरूरत पेश आती है, उसका इंतजाम भी किया है।
मैं तुम्हें सिर्फ एक मंजर दिखाऊंगा, उसने कहा और स्क्रीन के मनाजिर बदल गए। मैंने उस पर उन स्टेन गन बरदारों को देखा जो हिसार बनाए खड़े थे और उनके दरमियान इमारत के सारे मुलाजिमीन हिरासां खड़े थे। सेक्रेटरी उनके चेहरों को बगौर देख रहा था। ये पिछले दिन का मंजर था। उस कमबख्त ने उस मंजर को महफूज कर लिया था। हेंड्रिक बोला, मेरे आदमी मुझे आका समझते हैं। बस इस जजीरे का मालिक और मालिक टाइप के लोग सिर्फ अपने मातहतों पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन मैं जरा मुख्तलिफ इंसान हूँ। मैं खुद भी हालात पर निगाह रखता और जायजा लेता रहता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, जी। स्क्रीन पर अब मुलाजिमीन में से एक एक का चेहरा नुमाया हो रहा था। वो बोला, देखा नेगी? मैंने जवाब दिया, जी जनाब आली। दफतन उसने कहा, इनमें तुम नहीं हो नेगी। मेरे बदन में एक बार फिर सनसनी दौड़ गई। ताहम मैंने जल्दी से कहा, मैं पिछले 2 दिन से बीमार था। वो बोला, 2 दिन से? ठीक तो है, तुम्हें 2 दिन से बीमार होना ही चाहिए था। फिर भी क्या तुम मेरी बर्दाश्त की दाद नहीं दोगे? मैं एतराफ करता हूँ कि इन चेहरों में तुम जैसे अहम शख्स को न देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन उस वक्त जब अचानक तुम मुझे नजर आए तो मेरे जहन में फौरन ये ख्याल दर आया, क्या ये मेरी यादाश्त का कमाल नहीं? स्क्रीन साफ हो गई थी। वो बोला, बहरहाल छोड़ो डियर, हम किन मामलात में उलझ गए, ये बताओ नेगी कहाँ है? मैंने हैरत से कहा, जी। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, नेगी कहाँ है? मैंने कहा, मैं नेगी हूँ जनाब। बोला, नहीं मेरे दोस्त, नेगी कई बार मेरी मौजूदगी में मेरी ख्वाबगाह में आ चुका है। वो मेरी ख्वाबगाह से अदम वाकफियत का इजहार कैसे कर सकता है? वैसे तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी असल शक्ल दिखा दूं। उस शैतान ने कोई अमल किया और छत से मेरे ऊपर रोशनी की एक शुआ पड़ी। मैं रोशनी में नहा गया और दूसरे लम्हे मैंने स्क्रीन पर अपनी तस्वीर देखी। मैं उसी कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा था, लेकिन मेकअप के बगैर। मेरी असल शक्ल नुमाया थी। मेरे हाथों और पैरों की जान सी निकलने लगी। ड्रॉप सीन हो गया था। वो बोला, क्या ख्याल है मेरे नादान अजीज? मैंने कहा, काबिल तारीफ। स्क्रीन साफ हो गई। वो बोला, इजाजत हो तो मैं अब तुम्हें अली जार खान कहकर मुखातिब करूं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, इजाजत है। वो बोला, मुझे तुम्हारी ये बेखौफ मुस्कुराहट पसंद आई। आओ अब दूसरी बातें करें। अब तो तुम ऑलिव हार्वर्ड के नाम से भी अदम वाकफियत का इजहार नहीं करोगे। मैंने कहा, जाहिर है। उसने पूछा, पाकिस्तानी हो? मैंने कहा, खुदा का शुक्र है। बोला, कानून की तालीम हासिल कर रहे थे? मैंने कहा, हाँ। बोला, तालीम छोड़कर इन झमेलों में क्यों पड़ गए? मैंने कहा, बस इत्तेफाकिया तौर पर। एप्रन हॉल के एक इज्तिमा में यहूदियों की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं कर सका। हेंड्रिक ने कहा, हकीकतों को बेहूदगी कहना अक्लमंदी नहीं होती। मैंने कहा, मैं दोबारा उन हकीकतों की तफसील में नहीं जाऊंगा। एप्रन हॉल में बड़े बड़े जुगादरी मौजूद थे और उस वक्त जब मैं बोल रहा था उनकी जबानें गुंग थीं। और फिर बाद में झल्लाए हुए गीदड़ों ने गोल बनाकर मुझ पर हमला करने के अलावा और कुछ नहीं किया। हेंड्रिक बोला, गोया तुम्हारे ख्याल में इसराइल कोई हकीकत नहीं? मैंने कहा, हकीकत है, एक घिनौनी हकीकत जिसे देखकर इंसान की गर्दन शर्म से झुक जाती है। हेंड्रिक बोला, बहरहाल ये तुम्हारे नजरियात हैं, मगर कोई भी तुमसे मुत्तफिक नहीं। मैंने कहा, यह भी गलत है मिस्टर हेंड्रिक। जो लोग हमसे मुत्तफिक हैं आप भी उनके बारे में बखूबी जानते हैं। वो बोला, अमेरिका से किस तरह फरार हुए? मैंने कहा, बड़ी मुश्किल के बाद, जिंदगी और मौत का खेल खेलते हुए। उसने पूछा, वहां से लंदन आए थे? मैंने कहा, हाँ। बोला, और फिर वहां जेर जमीन मुजरिमों के गिरोह में शामिल हो गए? मैंने कहा, खासी मालूमात मुहैया कर ली हैं आपने मेरे बारे में मिस्टर हेंड्रिक। वो बोला, ऑलिव हार्वर्ड से तफसीली बातचीत हुई थी तुम्हारे बारे में। तुम बाद में हाई जैकरों से मिल गए थे? मैंने कहा, हाँ। तवील दास्तान है जिंदगी की, बहुत सी कहानियां हैं। बोला, अब तुम बाकायदा फलस्तीनी तंजीम में शामिल हो? मैंने कहा, हाँ, और अपनी खुशबख्ती पर नाजा हूँ। उसने पूछा, मार्सिया के पीछे क्यों लगे थे? मैंने कहा, मार्सिया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने कहा, मोहतरमा खुद ही मेरे पीछे लग गई थी। मैं उनकी शख्सियत से जरा भी वाकिफ नहीं था। उनके बारे में मालूमात तो यहीं आकर हासिल हुई। वो बोला, मार्सिया का जुर्म नाकाबिल माफी है। उसकी गलीज फितरत अब हमारे मकासद के आड़े आने लगी है। उसे भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। बहरहाल यहाँ तुम्हारा मददगार कौन है? मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, जजीरे पर तुम्हारा मददगार कौन है? मैंने तंजी अंदाज में कहा, तलाश कर लो, तुम तो जदीद तरीन आलात से लैस हो। हेंड्रिक मुस्कुराने लगा। उसने कहा, गोया यहाँ तुम्हें कोई मददगार नहीं मिल सका। मैंने कहा, यहाँ तुम्हारी नस्ल आबाद है, मेरी मदद कौन करता? वो बोला, बहरहाल तुम खासी हंगामा आराइयां करते रहे हो, इस सिलसिले में अपने लिए कोई मुनासिब सजा तजवीज कर लो। मैंने कहा, तुम उससे इत्तेफाक नहीं करोगे हेंड्रिक। वो मुझे घूरने लगा। फिर उसने एक बटन दबाया और वो पिंजरा खुल गया जिसमें दोनों स्याह फाम बंद थे। अच्छे तनोतोष के दोनों स्याह फाम पिंजरे का दरवाजा खुलते ही उछल कर खड़े हो गए। हेंड्रिक ने एक उंगली उठा दी, एक
अगर तुम में से दूसरे ने पिंजरे से बाहर कदम रखा तो दोनों इसी जगह राख हो जाओगे। चलो कोई एक बाहर निकल आओ। स्याह फामों में से एक पिंजरे से बाहर निकल आया। हेनरिक ने कहा, आगे आओ, बढ़ते रहो। पिंजरे का दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। हेनरिक की हिदायत पर स्याह फाम आगे बढ़ता रहा। फिर वो शीशे के उस हौज के ऊपर रुक गया। हेनरिक ने कहा, मौत का एक अंदाज ये भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।